Standard 7. Good morning, student. Exercise 6.4. Textbook page number 126. Question number 5. ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA means sum of the all sides. It is greater than twice AC plus BD. AC means diagonal and BD means another diagonal. Diagonal का sum करेंगे उसको double करो, twice करो, तो it is greater than the sum of the side measurements. Okay, to prove this, first draw the diagram. We know that the sum of the length of any two side of triangle is greater than its third side. Sum of the two side means think about this triangle. तो उसकी sum of the two side it is always greater than the third side. BC plus CD is greater than BD. See about this. AD plus AB it is greater than BD. So in triangle ABC. Now think about four triangle 1, 2, 3, 4. Triangle OAB. OAB की बात करेंगे तो OA plus OB is greater than AB. Now triangle OBC. तो OB plus OC is greater than BC. Now triangle OCD. तो OC plus OD it is greater than CD. Now triangle OAD. OA plus OD it is greater than DA. तो now you have four equation. आपके पास चार equation ready हो गए. Now adding this four equation, what you get? OA plus OB plus OC plus OC. But means all this you should add means each line comes twice. देखो OA तो OA कितनी बार आया? दो बार. OB 2 means each side is come twice. So you can write like this. Twice into OA plus OB plus OC plus CD. It is greater than this AB plus BC. Now make a pair. OA plus OC. OA plus OC means what? It is diagonal. See this. OB plus OD means it is diagonal BD. तो आप इस तरह से लिख सकते हो ट्वाइस इंटू AC प्लस BD. इसकी जगह पे ये डायगोनल, इसकी जगह पे ये डायगोनल. इट इज ग्रेटर देन दिस. तो दिस मीन्स अभी साइड शिफ्ट चेंज करो. ऑल साइड सम ऑफ दिस ऑल साइड्स इट इज ग्रेटर देन. इट इज क्या होगा? AC प्लस BD ट्वाइस. पर ये इक्वेशन सिर्फ अपने साइड चेंज किया है. तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 है. आप किस तरह से प्रूव करना है? ये रूल्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये रूल्स आप यूज़ करेंगे और 4 सेपरेट ट्राइंगल का लिए आप बताएंगे. फिर ये 4 इक्वेशन को एडिंग करना है. एडिंग करने के बाद ये ट्वाइस बताएंगे. ट्वाइस करने के बाद चेंज दिस ऑर्डर. And what is the OA plus OC? So it is a diagonal. Means now write down the name of the diagonal. Okay, and now change this side. Okay, now going to question number 6. The length of the two sides of the triangle are 12 and 15 centimeter. Between what two measure should the length of the third side fall? मीन्स ये आपका जो एग्जाम्पल 4 था उसी तरह से करना है. एग्जाम्पल 4 में क्या था? लेंथ ऑफ द टू साइड इज गिवन. तो थर्ड साइड का लेंथ किसके बीच में आएगा? थर्ड साइड इट इज फॉल बिटवीन. योर आंसर इज क्या था? 2 and 4. के लिए क्या किया था? ये दोनों साइड का पहले एडिशन किया, दो साइड का सब्ट्रैक्शन किया. तो सेम वी आर डूइंग लाइक दिस. ओके, we know that the sum of the two sides of a triangle is always greater than the third. Therefore, the third side has to be less than the sum of the two sides. The third side is less than 12 plus 15. पहले एडिशन करो. 12 plus 15. तो आंसर is 27. Now the third side cannot be less than the different. Right? It cannot be less than the different of the two sides. The third difference इसका करेंगे 15 minus 12 means it is 3 centimeter. Now the length of the third side is between 3 and 27. Not greater than
27 एंड नॉट लेस देन 3। 3 और 20 बहुत ही आसान है। जो भी दो साइड आपकी दी है मेजरमेंट, इसको एडिशन कर लो और उसको सब्ट्रैक्शन कर लो। जो नंबर मिलेगा उसके बीच में आपकी थर्ड साइड आएगी। एग्जैक्टली एग्जाम्पल 4। ओके, नाउ थिंक, डिस्कस एंड राइट। इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। देखो, हम साइड की बात कर रहे थे, साइड के लिए ये बात सही है, पर एंगल के लिए द सम ऑफ एनी टू एंगल, कोई भी दो एंगल आप लेते हैं ट्रायंगल का, बराबर। तो एक जैसे है 30, दूसरा है 90, तो सम ऑफ दिस एडिशन करो 90 प्लस 30, तो आंसर आया 120। तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन। ये एक दूसरा एक एग्जाम्पल आप लेके देखो, एक है 30 और दूसरा है 20, 30 प्लस 20 50 हुआ, तो अनदर एंगल 180 माइनस 50, तो इट इज़ ग्रेटर देन। Sometimes the answer is sometimes it is greater, sometimes it is smaller. No may or may not be greater than the third angle. कभी एडिशन आपका थर्ड एंगल से ग्रेटर होगा, कभी थर्ड एंगल से स्मॉलर भी हो सकता है, नॉट ऑल द टाइम। ओके, तो ये थिंक, डिस्कस एंड राइट भी क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखेंगे। नाउ गो अहेड। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। Who is Pythagoras? The Pythagoras is a Greek philosopher of 6th century BC. He is said to have found very important and useful property of right angle triangle given in this section. ये पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था, 6th सेंचुरी में हो गया था, और उसने एक बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी हमें दिया है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी हैंड्स द नेम आफ्टर हिम। In fact, property was known to the people of many other countries. ये पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट की गई है। इंडियन मैथमेटिशियन बुधायन हैज ऑल्सो गिवन एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वी नो ट्राई टू एक्सप्लेन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एक मैथमेटिशियन बुधायन करके थे, उन्होंने भी ये प्रॉपर्टी प्रूव किया है। अभी बात कर रहे हैं कि व्हाट इज इन दिस प्रॉपर्टी। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड्स हैव सम स्पेशल नेम। उसकी जो साइड है उसको हम सबको स्पेशल नेम दिया है। एंड द साइड ऑपोजिट्स टू द राइट एंगल इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, एंड द अदर साइड्स आर नोन एज द लेग ऑफ द राइट एंगल। मीन्स ए बी एंड बी सी लेग है और ए सी हाइपोटेन्यूस है। उसके लिए नाम लिखेंगे। नाउ फिगर 6.23, ये देखिए, द राइट एंगल इज बी and so AC is the hypotenuse. AC is the hypotenuse and AB and BC is the leg. Make 8 identical copies of the right angle triangle. बराबर, आपको 8 ट्राइंगल बनाने हैं, पर कैसे? राइट एंगल, और कैसे? आइडेंटिकल, मीन्स एकदम सेम। एग्जैक्ट 8 कॉपी कट करनी है राइट एंगल ट्राइंगल की। फिर उसको आप जो डायग्राम बताया है इस तरह से उसको अरेंज करो। Whose hypotenuse is the A and the legs are B and C. Means ये जो मेजरमेंट आपको दिया है ऐसा ही 8 आइडेंटिकल ट्रायंगल आप कट करेंगे, बराबर, जिसका हाइपोटेन्यूस को आप A नाम देंगे और दोनों लेग को B and C नाम देंगे। ड्रॉ 2 आइडेंटिकल स्क्वायर्स ऑन द शीट विथ साइड ऑफ द लेंथ B plus C. मीन्स अभी आपको क्या करना है? 2 आइडेंटिकल स्क्वायर ड्रॉ करने हैं। एक पेपर में ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करो, बराबर, और क्या करना है? दोनों स्क्वायर का मेजरमेंट सेम। यू आर टू प्लेस 4 ट्रायंगल इन 1 स्क्वायर एंड द रिमेनिंग 4 ट्रायंगल इन अदर स्क्वायर। आप इस तरह से पैटर्न से उसको अरेंज करो, सबका हाइपोटेन्यूस अंदर की साइड है, इस पैटर्न से अरेंज करो और यहाँ पे इस तरह से अरेंज करो। जो 4 ट्रायंगल थे तो आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 4 इस तरह से, डायग्राम में जो बनाया है 6.25 में उस तरह से। नेक्स्ट पेज। द स्क्वायर्स आर आइडेंटिकल, द 8 ट्रायंगल्स इंसर्टेड आर ऑल्सो आइडेंटिकल। तो क्या होगा अभी? अनकवर एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू अनकवर एरिया ऑफ द स्क्वायर BC। मीन्स ये जो अनकवर एरिया इसका एरिया करेंगे और ये दोनों का एरिया करेंगे, तो क्या आएगा? ऑलवेज सेम।
एरिया की फॉर्मूला आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, स्क्वायर है तो इस तरह से आप करेंगे तो योर आंसर इज सेम। द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर ऑफ द ए इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ द टू अनकवर स्क्वायर इन द स्क्वायर बी, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी। देखो ए स्क्वायर और यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन्स ये ए का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ द ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बी। ये देखिए इन द राइट एंगल ट्रायंगल द पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज स्टेटेड, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स, मीन्स उसकी साइड का जो स्क्वायर करेंगे जो उसका सम करेंगे तो आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल जाएगा। Pythagoras property is very useful tool in mathematics. It is formally proved as theorem in later classes. You should be clear about its meaning. It says that for any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the area of the square on the legs. ये पूरा थियोरम है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके किया है। अभी आप ट्रायंगल का इस तरह से भी अरेंजमेंट करो। आपके पास 3 स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ए स्क्वायर, ए बी और उसकी अलग अलग मेजरमेंट के, उसको आप अरेंज करो तो यू गेट द ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इस तरह से आपको मिलेगा। वी विल ट्राई टू आंसर दिस नाउ। वी विल शो दैट इफ देयर इज अ ट्रायंगल सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑन 2 ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, sum of the two side square, it is equal to the square of the third side। ये भी एक्टिविटी है और ये भी आपको समझ के करनी है। ये डू दिस है, मीन्स ये भी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आपको क्या प्रूव करेगी, इफ़ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी कर रहा है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो ही वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ओवर।